हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद दी परमेश्वर का धन्यवाद देते এই সপ্তাহের বাক্যের জন্য। इस हफ्ते के वचन के लिए। এই সপ্তাহের বাক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। इस सप्ताह का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। কারণ হচ্ছে এই সপ্তাহের বাক্য আমরা প্রভুর ভোজ নিয়ে করতে চাচ্ছি। और इस हफ्ते का वचन जो है हम लोग प्रभु भोज को लेके करेंगे। কেন মণ্ডলীতে প্রভুর ভোজ করা গুরুত্বপূর্ণ? क्यों मंडली में प्रभु भोज को करना महत्वपूर्ण होता है? এবং প্রভুর ভোজের অর্থ কি? और प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? আর সেটা দেখতে গেলে আমাদের পুরাতন নিয়মে যেতে হবে। और उसको देखने के लिए हमें पुरातन नियम में जाना কিন্তু पड़ेगा। তার আগে আমরা প্রথম করিন্থীয় তার 5 অধ্যায় 7 পদ দেখি। मगर उससे पहले हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 7 पद देखेंगे। পুরাতন তারি বাহির করিয়া দাও যেন তোমরা নতুন তাল হইতে পারো, তোমরা তো তারি শূন্য, কারণ আমাদের নিস্তার পর্বীয় মেষশাবক বলিকিত হইয়াছেন তিনি খ্রিস্ট। यहाँ पे बोल रहा है पुराने खमीर से छुटकारा पाओ ताकि तुम आटे का नया लौदा बन सको। तुम तो बिना खमीर वाले फसह की रोटी के समान हो। हमें पवित्र करने के लिए मसीह को फसह के मेमने के रूप में बलि चढ़ा दिया गया। हालेलुया हालेलुया। পুরাতন তারি বাহির করিয়া দাও। पुराना जो रस खमीर है उसे निकाल दो এবং তোমরা নতুন তাল হইতে পারো। और तुम लोग नए लौंदा बन सको। হালেলুয়া হালেলুয়া। নতুন হওয়ার জন্য এই প্রভুর ভোজের প্রয়োজন আছে। नया बनने के लिए इस प्रभु भोज का जरूरत है। আর এই প্রভুর ভোজ বা এই প্রভুর ভোজের যে পর্ব শুরু হয়েছিল যিশু যখন এই সেলিব্রেশন করেছিল সেটা কোথায় থেকে শুরু? और ये प्रभु भोज का जो पर्व होता है इसका जो पालन हुआ ये कहाँ से शुरू हुआ? আর ওইটাকে আমরা নিস্তার পর্ব বলে থাকি। और हम लोग इसको कहते हैं फसह का पर्व। আর নিস্তার পর্ব কি? और फसह का पर्व क्या होता है? আসুন ইতিহাসে ফিরে যাই এবং নিস্তার পর্বের অর্থ কি তা দেখি। और आइए हम लोग इतिहास में लौट जाते हैं और फसह का पर्व क्या होता है उसको देखते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর ইসরায়েলি লোকেদের মিশরে নিয়ে গিয়েছিলেন और परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश में ले गए थे। এবং কিছু বছর পর তিনি তাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন। और कुछ सालों बाद उनको मिस्र से परमेश्वर बाहर निकाल लाए। এবং উভয় সময় এটি ছিল মানুষের পরিত্রাণের জন্য। और ये था समस्त इस्राएलियों के लिए परित्राण का समय। মিশর থেকে ইসরায়েলের লোকেদের বের করে আনার জন্য ঈশ্বর তার শক্তি দেখিয়েছিলেন। और मिस्र से इस्राएलियों को निकाल कर लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी शक्ति को दिखाया था। প্রতিটি ক্ষেত্রে মিশরীয়রা দেবতারা পরাজাতীয় হয়ে উঠেছিল এবং তারা নানা রকম জিনিসের পুজো করত। और मिस्र के लोग क्या हुआ था उस समय वो लोग प्रजाति जैसा बन चुके थे। वो लोग बहुत तरह के कुछ सामानों को वो लोग पूजा करते थे। এবং যদি যাত্রা পুস্তক আপনি 6 অধ্যায় 1 থেকে দেখতে থাকেন और পুরোটা, अगर निर्गमन 6 अध्याय का 1 पद से आप अगर देखते रहे, আমাদের অতটা পড়ার সময় নেই, और अभी हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है वो पढ़ने का, আপনি পড়তে পারেন। आप घर में पढ़ सकते हैं। সেখানে তারা অনেক বিষয়গুলোকে নিয়ে তারা পুজো করত। और वो लोग बहुत विषय को लेकर पूजा करते थे। যেমন নাম হচ্ছে রক্ত, ব্যাং, ছানা, মাছি, গাবাদি পশু, ফোঁড়া, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, অন্ধকার। और खून, मेंढक और फिर छाना, माछी ये सब को पूजते थे। बहुत तरह के कीट पतंगों को भी वो लोग पूजते थे। আর এইগুলো আসলে তাদের জীবনের একটা বিনাশের কারণ হয়েছিল। और ये सब चीजें उनके जिंदगी में विनाश का कारण बन चुका था। যতবারই মসি তাদের রাজার কাছে গেছিল এবং তাদেরকে বার করাবার কথা বলেছিল, তা সে যতবার না বলেছিল আর ততবার এই সমস্ত বিনাশ তাদের কাছে নেমে এসেছিল। রক্ত, ব্যাং, ছানা, মাছি, গবাদি পশু, ফোঁড়া, গায়ের ফোঁড়া, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, অন্ধকার। और जब मूसा जब गए थे उन मिस्र के राजाओं के पास उनके विषय में बोलने के लिए, तो उन्होंने जितनी बार उनको मना किया तब तक ये सारी चीज़, ये जो पंगपाल है, ये जो मक्खी है, ये जो लहू है, अंधेरा है, ये हर चीज़ उनके ज़िंदगी में विनाश का कारण बना। আর শেষ যে বিনাশটা ছিল, और आखिरी जो विनाश आया था সেটা ছিল মৃত্যুদূত। वो था मृत्यु का दूत। ফরিসীয় রাজাদের অহংকারে দমন করার জন্য और फरीसी राजाओं के अहंकार को दमन करने के लिए। এবং 12 অধ্যায় যদি আপনি পড়েন, যাত্রা পুস্তক 12 অধ্যায় যদি পড়েন, और निर्गमन 12 अध्याय से अगर आप पढ़ना शुरू करें,
আর তাদের এই বিনাশকারী যে দূত, মৃত্যু দূত যখন এসেছিল, তাদেরকে যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী তাদেরকে বাঁচার জন্য যে বিশেষ একটা রাস্তা দেওয়া হয়েছিল বা প্রসেস করতে বলা হয়েছিল, কাজ করতে বলা হয়েছিল বা নিয়ম দেওয়া হয়েছিল, और मिस्र के लोगों को उस विनाश से निकालने के लिए जो एक विशेष पर्व या एक विशेष नियम दिया गया था, वो नियम क्या था? তা ছিল একটি মেষশাবক নিন যেটি নিখুঁত और एक भेड़ के बच्चे को ले जो बिल्कुल भी पाप से भरा हुआ ना हो, वो पुण्य हो। এইটা তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যারা যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এবং যারা এই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেছিল, তারা তারা এই নিয়মটাকে পালন করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল। और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे उनको ये नियम पालन करने का आदेश मिला था। একটি মেষশাবক নিন যেটি নিখুঁত, और एक भेड़ के बच्चे को लीजिए जो जिसके अंदर कोई खूंट या कोई गंदगी ना हो, কোনো ভুল করেনি এমন মেষশাবক, कोई गलती नहीं किया ऐसे एक बच्चे को ले, এবং সেই মেষশাবককে নিয়ে কয়েকদিন আপনার কাছে রাখুন যেন পালিত হয়। और उस भेड़ के बच्चे को लेकर कुछ दिनों तक अपने पास रखे और उसको पाले। তারপরে মেষশাবকটিকে মেরে তার রক্ত দিয়ে তোমার দরজার চৌকাঠে মানে উপরে সেই রক্ত লেপন করে দাও। और उस भेड़ के बच्चे को मारकर उसके लहू को लेकर दरवाजे के चौखट पर उस लहू को लगा दे। হালেলুয়া। हालेलुया। তারপরে যাতে সেই রক্ত দেখে সেই বিনাশকারী মৃত্যুদূত পাশ কাটিয়ে চলে যায়। और उस खून को या उस लहू को देखकर जो मृत्यु का दूत है वो डर कर वो उस घर के तरफ से गुजर দরকার जाए নেই, মানে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। और उसको जस्ट वो यहाँ से निकल जाएगा, वहाँ से गुजर जाएगा उसको देखकर। আমিন। ভয় করে না, কারণ এটা মৃত্যুদূত এসে এদেরকে বিনাশ করতে যারা বিরোধী। और मृत्यु दूत जो आए थे वो इनको विनाश करने आए थे, जो विरोधिता कर रहे थे उनको विनाश करने मृत्यु दूत आए थे। আরে মৃত্যুদূতের কাজ থাকবে যখন সে চৌকাঠের রক্ত দেখবে, সে কিন্তু সেই ঘরের ভিতরে ঢুকে উঁকি মেরে দেখবে না কে কে আছে এবং তারা ঠিক আছে না, ভালো আছে না, পবিত্র আছে, কিছুই দেখবে না, শুধু রক্ত দেখবে আর সে সেই ঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। और उस घर के लहू को वो मृत्यु दूत सिर्फ देखेगा, वो नहीं देखेगा अंदर में कौन है, कैसे लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं देखेंगे, वो लोग सिर्फ उस लहू को देखेंगे और वहां से जस्ट गुजर के निकल जाएंगे। এটাই ছিল নিস্তার পর্ব, यही था फसह का पर्व, আর এটাকেই নিস্তার পর্ব করা হয়েছিল। और इसी को फसह पर्व किया गया था। ইসরায়েলের লোকেরা সেই মেষশাবক খায়, और इजराइल के लोग उस भेड़ के बच्चे को खाते थे। পরের দিন ঈশ্বর তাদের মিশর থেকে বার করে আনেন। और अगले दिन मिस्र से उनको निकाल कर परमेश्वर लाते हैं। এই মিশরীয়রা প্রচুর অত্যাচারী হয়েছিল এবং তারা শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। और ये मिस्र के लोग जो थे वो बहुत अत्याचारी बन चुके थे और शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल और बीमार बन चुके थे। অত্যাচারী নেই, অত্যাচার हुआ था। उनके ऊपर अत्याचार हुआ था और वो बीमार हो चुके थे। কিন্তু যখন এই যেই মেষকে বলি করতে বলা হয়েছে, সেই মেষ মেরে তারা রক্ত লাগাবার পর সেই মেষকে খেয়েছিল, তার অনেক প্রসেস আছে বাইবেলে, আমি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু সেই মেষ মেরে যখন তারা খেয়েছিল, और उस मेष को मारकर या उस भेड़ के बच्चे को मारकर जब उन्होंने खाया था, পরের দিন ঈশ্বর তাদের মিশর থেকে বার করে আনেন। और अगले दिन परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर निकाल कर लाए। যারা হাঁটতে পারতো না, চলতে পারতো না, এত দুর্বল হয়ে গেছিল, তারা আর কেউ অসুস্থ ছিল না। और जो चल नहीं पाते थे, दुर्बल थे या लंगड़े थे, वो उनको फिर से वो चलने लगे और वो स्वस्थ और चंगे भले बन गए। সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছিল। हर कोई चंगे भले बन गए थे। নিস্তার পর্ব फसह पर्व এটি ঈশ্বর যা করেছেন সেটিকে স্মরণ করা বা মনে রাখা। और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया था उसको स्मरण करना और उसको याद रखना। সেই জন্য নিস্তার পর্ব পালন করা হতো যাতে ঈশ্বরকে স্মরণ করা যায়। और इसीलिए फसह का पर्व को पालन किया जाता है ताकि हम लोगों को परमेश्वर के सारे कामों को याद कर আর सके। কেন নিস্তার পর্ব ছিল? और क्यों फसह का पर्व था? ঈশ্বর মূর্তি পূজা ঘৃণা করে এটা জানা মনে রাখার জন্য। और परमेश्वर मूर्ति पूजे को घृणा करते थे, इसको याद रखने के लिए। এটা মানুষের মনে রাখা উচিত। और इसको हर किसी को याद रखने का जरूरत है। আর সাথে এটাও মনে রাখতে হবে মানুষেরা যেন এই কথাগুলো মনে রাখে যে ঈশ্বর তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। और हर कोई इंसान इसको याद रखे कि परमेश्वर उनको रक्षा किया है। আর এমনকি যদি মানুষেরা কি বলবো, ওটা
সেই বিষয়গুলো ঈশ্বরকে জেনেছে, বুঝেছে, আর তারপরে তাকে স্বীকার করেছে, তাহলে তারা আশীর্বাদ যুক্ত হয়েছে এবং সেই মৃত্যু দূত থেকে তারা বেঁচেছে। और अगर उन्होंने ये सब चीज़ को याद किया कि परमेश्वर ने क्या किया था, उनको माने और विश्वास किए, तो वो लोग सारे मृत्यु दूत से वो लोग बच सकते थे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যতজন এই বিষয়টাকে বিশ্বাস করেছে তাদের জীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ তারা দেখতে পেয়েছে। और जितने कोई इसको विश्वास किए वो लोग परमेश्वर के अलौकिक और आश्चर्यजनक काम को देख पाए थे। এবং তারা প্রকৃতভাবে ঈশ্বরকে আরো কাছ থেকে দেখতে পেয়েছে। और प्रकृति हिसाब से वो लोग परमेश्वर को और नजदीक से देख पाए थे। মনে রাখবেন, যে ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসেন, और याद रखिएगा, जो परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, সেই ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতিকে বদলে দিতে পারে। वही परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदल सकते हैं। ঈশ্বর আমাদের জন্য যে পরিবর্তনগুলো করেছেন তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। और परमेश्वर ने जो जो परिवर्तन हम लोगों के लिए किया था, उनके लिए हमें प्रस्तुति लेना होगा। কারণ ঈশ্বর যা কিছু পরিবর্তন করেছে তা আমাদের উত্তমের জন্য, উত্তমের বিষয়। परमेश्वर ने जो कुछ भी परिवर्तन किया है हमारे उत्तमता के लिए, हमारे उत्तम विषय के लिए। আর সেই মৃত্যুদূতের একটা ইব্রিয় নাম ছিল, और वो मृत्यु হিব্রু दूत का শব্দ ছিল एक हिब्रू नाम था, शब्द था, পেশাহ, उनका नाम था पेसाह, যার বাংলা ট্রান্সলেশন হচ্ছে চলে যাচ্ছে। और जिसका हिंदी में जिसका रूपांतर है चले जा रहा है। মৃত্যুদূত আসে मृत्यु दूत आता है কিন্তু ভেতরে আসে না। मगर अंदर नहीं आता है। যদি ঈশ্বর মেষশাবকের রক্ত ব্যবহার করে এমন লোকেদের রক্ষা করার জন্য, যিশু আমাদের জীবনের সেই মেষ যে আমাদেরকে প্রকৃতভাবে রক্ষা করেন। और परमेश्वर अगर उस भेड़ के बच्चे के लहू के द्वारा हमें बचा सकता है, तो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हम लोगों को बचाए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। শয়তানের উপর আমাদের বিজয়ের একমাত্র উপায় সেটা হচ্ছে প্রভু যিশুর রক্ত। और शैतान के ऊपर सिर्फ हम एक उपाय से विजय पा सकते हैं, वो उपाय है यीशु मसीह का लहू। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি আপনার শক্তিতে কখনো শয়তানকে হারাতে পারবেন না, आप अपने शक्ति से कभी भी शैतान को नहीं हरा सकते, তার প্রতিরোধ করতে পারবেন না। उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। শুধুমাত্র যিশু আপনার জন্য যা করেছেন তার কারণেই আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন বা তাকে হারাতে পারবেন। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, बस उसी के बदौलत आप हरा सकते हैं। খ্রিস্ট ধর্ম নয়, এটা একটা জীবনের শুরু। और ख्रिस्टीय धर्म एक धर्म नहीं है, वो एक जिंदगी का शुरुआत होता है। নতুন সৃষ্টি, नया सृष्टि होता है। পুরাতন বিষয় মুছে গিয়ে নতুন সৃষ্টি হওয়া। पुराना विषय मिट जाकर नए से शुरू करना। মেষশাবকের বলি সেই দিনে একটা নতুন ছবি ছিল যেটা আমাদের জন্য প্রভু যিশুকে দেওয়া হয়েছিল। और वो जो भेड़ के बच्चे का जो बलि था, वो एक नया चित्र था हमारे लिए कि हमें भी यीशु मसीह को दिया जाएगा। আমাদের আর ভেড়ার বাচ্চার দরকার নেই, और हमें और उस भेड़ के बच्चे का जरूरत नहीं है। যিশু বলেন আমার রক্ত এবং আমার শরীর নাও। और यीशु मसीह कहते हैं मेरे शरीर और मेरे लहू को ले। যিশু বলেন আমি সেই মেষশাবক। और यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही वो भेड़ का बच्चा हूँ। যখন আপনি প্রভুর ভোজ নেবেন, जब आप प्रभु भोज को ग्रहण करिएगा, সেই মৃত্যু আপনার উপরে দিয়ে আর নিস্তার পর্ব হবে না, মানে সেই মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করতে পারবে না, কিন্তু যিশুর রক্ত নিস্তার পর্বে যেরকম বাঁচানো গিয়েছিল সেরকম যিশুর রক্ত আপনাকে বাঁচাবে। और इससे आपको मृत्यु नहीं आएगा, मगर फंसे के पर्व में जो परमेश्वर का लहू से, यीशु मसीह के लहू में से आपको बचाया गया था, भेड़ का लहू से जैसा बचाया गया था वैसा प्रभु यीशु का लहू से इस समय भेड़ आपको के बचाया लहू जाएगा। से जैसा बचाया गया था, यीशु मसीह के लहू से भी बचाया जाएगा। आमीन। आमीन। যোহন তার 1:29 पद বলে, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 29 पद में कह रहा है, পরের দিন তিনি যিশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন আর কহিলেন এই দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा परमेश्वर के मेमने को देखो जो जगत के पाप को हर ले जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানে একটা বুঝার ব্যাপার আছে, यहाँ पे एक समझने का विषय है। যিশু কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সেই মেষ ছিল না। और यीशु मसीह परमेश्वर के लिए वो मेष नहीं था, যিশু ছিল ঈশ্বরের দিক থেকে একটা মেষ। और यीशु मसीह थे परमेश्वर की तरफ से एक मेष।
আমরা ঈশ্বরের কাছে যিশুকে চড়িয়ে দিইনি, কিন্তু যিশুকে ঈশ্বর আমাদের জন্য বলি করিয়েছিলেন। और हम लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पास नहीं चढ़ाया, मगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा था। আমেন आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया। রক্ত ছাড়া পাপের ক্ষমা নেই। और लहू के बगैर पापों का क्षमा नहीं है। এই কারণে তাহারা তাদের পাপের ক্ষমার জন্য পশু বলি নিয়ে এসেছিল। और इसीलिए वो अपने पापों के क्षमा के लिए वो लोग पशुओं के बलि के लिए पशुओं के बलि को पशु को लाए थे बलि के लिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আর এটা পার্মানেন্ট ক্ষমা ছিল না, বা পার্মানেন্ট একটা পশু বলি করলে আমার সারা জীবনের পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে, তা ছিল না। और ये परमानेंट क्षमा नहीं था जे एक पशु को मैंने बलि कर दिया तो मुझे क्षमा मिल गया हमेशा के लिए, ऐसा नहीं था। তাদেরকে প্রত্যেক বছর সেই পাপের বলি চড়াতে হতো। उनको हर साल वो पापों का बलि चढ़ाना पड़ता। যেরকম আমরা যে কোনো জিনিস রেনু করি, সেই রকম পাপের ক্ষমা রেনু করতে হতো। और जैसे हम लोग हर चीज को रिन्यू करते हैं, पापों के क्षमा को भी रिन्यू करना पड़ता था। কিন্তু ঈশ্বর যিশুকে দিয়েছিলেন मगर परमेश्वर यीशु को दिए थे সর্বোত্ত উত্তম বলিদান, যে রক্তে পাপ সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে যেতে और পারে। सर्वोत्तम वो बलिदान जिसके लहू से पूरे पापों को धोया जा सकता ইব্রিয় 10:1 বলছে, है। इब्रानियों 10 का 1 पद में कह रहा है, কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ে ছায়া বিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্তি নহে। সুতরাং এই রূপ একরূপ যে সকল বার্ষিক যোগ্য নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্বারা যাহারা নিকটে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনো সিদ্ধ করিতে পারে না। व्यवस्था का विधान तो आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र प्रदान करता है, अपने आप में वो बातें यथार्थ नहीं है। इसलिए उन्हीं बलियों के द्वारा जिन्हें निरंतर प्रति वर्ष अनंत रूप से दिया जाता रहता है, उपासना के लिए निकट आने वालों को सदा सदा के लिए संपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता। হালেলুয়া। हालेलुया। বছরের পর বছর তাদের নিজেদের পাপকে ঢাকার জন্য পশুর রক্ত ব্যবহার করা হতো। और सालों साल उनको क्या हुआ था, उनके पापों को ढकने के लिए उनको पशुओं का लहू इस्तेमाल करना पड़ा था। হিব্রিয় তার 10:10 বলছে, इब्रानियों 10 का 10 पद में कह रहा है, সে ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রিস্টের দেহ একবার উৎসর্গকরণ দ্বারা আমরা পবিত্রকৃত হইয়া রইয়াছি। सो परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र कर दिए गए। একবারের দ্বারা আমরা পবিত্রকৃত হয়েছি। एक बार के लिए एक बार ही पवित्र बन चुके थे हम लोग, एक बार में ही। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা, এইটাকে আমরা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করি বা দাবি করি যখন আপনি প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন। और ये आप तब ग्रहण करते हैं या दावी करते हैं जब आप प्रभु के भोज को ग्रहण करते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। গ্যালাতিয়ান্স তার 2:20 गलातियों उनका 2 अध्याय का 20 पद, খ্রিস্টের সহিত আমি কুশরোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নয়, কিন্তু খ্রিস্টই আমাতে জীবিত আছেন। আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে তা আমি বিশ্বাসে ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাসে যাপন করিতেছি। তিনি আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ वो तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। হালেলুয়া। हालेलुया। তিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন, उन्होंने हमें अपने पापों से मुक्ति दिया है, তিনি আমাদের রোগমুক্ত জীবন दिएছেন, उन्होंने हमें रोग मुक्त जीवन दिया है, তিনি আমাদের মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন। उन्होंने हमें मृत्यु से जीवित किया है। প্রথম করিন্থীয় पहला कुरिन्थियों 11:23-24 11 अध्याय का 23 और 24 पद সবার মনে আছে। हर किसी को याद है। কারণ আমি প্রভু হইতে শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগতে সমর্পণ করিতেছি যে প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙিলেন ও কহিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য
আমার শরণার্থী ইয়া করিও। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो सीख मैंने तुम्हें दी है वो मुझे प्रभु से मिली थी। प्रभु यीशु ने उस रात जब उसे मरवा डालने के लिए पकड़वाया गया था, एक रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद उसने उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मुझे याद करने के लिए तुम ऐसा ही किया करो। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের জন্য তার শরীর ভাঙা হয়েছিল। हमारे लिए उनके शरीर को तोड़ा गया। যখন আমরা এটা গ্রহণ করি, जब हम इसको ग्रहण करते हैं, এটা আমাদের মাথায় বা আমাদের চিন্তায় নিয়ে আসি যে তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে রোপিত হয়েছে আর আমাদের পাপ চিরকালের জন্য মুছে দিয়েছে। तब हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया है और हमें अपने पापों से मुक्त किया है। হালেলুয়া। हालेलुया। 25 পদ বলছে, और इसका 25 पद में कह रहा है, সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্র লইয়া কইলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম, তোমরা যতবার পান করিবে আমার শরণার্থী ইয়া করিও। उनके भोजन कर चुकने के बाद इसी प्रकार उसने प्याला उठाया और कहा, ये प्याला मेरे लहू के द्वारा किया गया एक नया वचा है, जब कभी तुम इसे पियो तभी मुझे याद करने के लिए ऐसा करो। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা আত্মার মৃত্যু এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ থেকে নিস্তার পর্ব পালন করি। और हम लोग परमेश्वर से विच्छेद नहीं होने के लिए हम लोग फसह का पर्व को पालन करते हैं। যিশুর রক্ত আমাদের ঈশ্বরের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং তার কাছের করে। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के पास लेकर आता है, उनके और नजदीकी बनाता है। ঈশ্বর চান যেন আমরা যিশুর সেই স্যাক্রিফাইস, যিশুর সেই বলিদান, সেই প্রকৃত বলি যেন আমরা মনে রাখি। और परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान को, उस प्राकृतिक बलिदान को हम लोग याद रखें। তার শরীর যেন আমরা প্রতিদিন আমাদের মণ্ডলীতে ভাঙি এবং গ্রহণ করি। और उनके शरीर को हम मंडली में हर दिन तोड़े और उसको ग्रहण करें। আর তার রক্ত যেন আমরা স্মরণ করি, और उनके लहू को हम लोग स्मरण करें, যা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দেয়। जो हमें पापों से मुक्ति देता है। 26 পদ বলছে, 26 पद में कह रहा কারণ है, যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন করো এবং এই পান পাত্রে পান করো ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাকো যে পর্যন্ত তিনি না আসছেন। क्योंकि जितनी बार भी तुम उस रोटी को खाते हो और उस प्याले से पीते हो, उतनी ही बार जब तक वो आ नहीं जाता तुम प्रभु के मृत्यु को प्रचार करते हो। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভুর ভোজ হলো ঘোষণা। प्रभु का भोज होता है घोषित करना। আত্মাধিক জীবনে বা আত্মাধিক জীবনে আমরা ঘোষণা করি শয়তানের হারাকে। और हम लोग शैतान के हार को घोषणा करते हैं अपने आर्थिक जीवन में। আমরা ঘোষণা করি যে আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত। हम लोग घोषणा करते हैं कि हमें मुक्ति मिल चुका है। এটা কোনো ধর্মীয় আচরণ নয়, অনুষ্ঠান নয়। ये कोई धर्मीय आचरण या अनुष्ठान या पर्व नहीं है। প্রভুর ভোজ হলো একটা ঘোষণা। प्रभु का भोज एक घोषणा है। আপনি ঘোষণা করছেন যে যিশু রক্ত দ্বারা আপনি সূচীকৃত হয়েছেন। और आप घोषणा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको सूची और पवित्र किया गया। আপনি ঘোষণা করছেন যে প্রভু যিশু রক্ত দ্বারা আপনি সুস্থতা পেয়েছেন। और ये आपको घोषणा किया गया है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपको चंगाई मिला है। আপনি আপনার জীবনে আর কোনো মন্দ বিষয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। और आपकी जिंदगी में और कोई बुरा चीज प्रवेश नहीं कर सकता है। যখন আপনি প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন, जब आप प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, আপনি মনে রাখবেন যে অসুস্থতা আপনার ভেতরে নেই। तब आप याद रखिए या इसको विश्वास करिए कि आपके अंदर और वो बीमारी नहीं है। আপনি গ্রহণ করা মানে, প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা মানে আপনি ঘোষণা করছেন অসুস্থতা আমার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাও। और आप प्रभु भोज को जब ग्रहण कर रहे हैं तो आप घोषणा कर रहे हैं कि बीमारी तुम मेरे अंदर से निकल जा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাদের মনে আছে আদম হাওয়া কিভাবে পাপ শুরু করেছিল? आप लोग को पता है आदम और हवा किस तरह से पाप शुरू किया था? তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং ফল খেয়েছিল। और वो लोग बात नहीं सुने और उन्होंने उस फल को खाया था। ফল খাবার দরুন তারা যখন খেয়েছিল তারা পাপ করেছিল এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছিল। और वो लोग जब वो फल को खाए थे उन्होंने पाप किया था और उनके ज्ञान के आंख खुल गए थे। আর অসুস্থতা সেই পাপ স্বরূপ তাদের জীবনে এসেছিল। और बीमारी उनके अंदर वो पाप के द्वारा प्रवेश किया था। তার মানে খাবার দ্বারা তাদের জীবনে পাপ এসেছিল। और खाने के बदौलत उनके जिंदगी में पाप आया था। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে যিশু আপনার জন্য যা করেছেন আর সেটাকে গ্রহণ করেন, और आप अगर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है और उसको आप ग्रहण करते हैं, তাহলে আপনিও সেই একই কাজ করছেন। আপনি প্রভুর ভোজ খাবার মাধ্যমে সেই পাপকে বিনাশ করছেন, পাপের মুক্তি পাচ্ছেন এবং অসুস্থতা থেকেও সুস্থতা পাচ্ছেন। आप प्रभु भोज को जब ग्रहण कर रहे हैं तो आप ये घोषणा करिए कि उस पाप को आप हटा रहे हैं और उस पाप से आप मुक्ति पा रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया।
যদি আমরা লেবীয় পুস্তক তার 17 অধ্যায় আর 11 পদ দেখি, और लेवीय व्यवस्था उसका 17 अध्याय का 11 पद। কেননা রক্তের মধ্যে শরীরের প্রাণ থাকে এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদেরকে দিয়াছি, কারণ প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্তের সাধক। क्योंकि प्राणी का जीवन खून में है, मैंने तुम्हें उस खून का वेदी पर डालने का नियम दिया है। तुम्हें अपने को शुद्ध करने के लिए ये करना चाहिए। तुम्हें वो खून उस जीवन के बदले में मुझे देना होगा जो तुम लेते हो। हालेलुया। हालेलुया। উদাহরণস্বরূপ আপনাদের বলতে পারি, और उदाहरण के रूप से आपको बोल सकते हैं, আপনি যদি মনে করেন কারোর রক্ত খারাপ হয়ে গেছে বা ইনফেকশন হয়ে গেছে, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी का लहू गंदा हो गया, खराब हो गया या इन्फेक्शन हो गया, আর সেই ব্যক্তির রক্ত কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি দেওয়া হয়, সে সুস্থ হবে না, আরো তার জীবনে সেই অসুস্থতা নেমে আসবে। और उसी लहू को अगर किसी बीमार व्यक्ति के शरीर में दिया गया तो क्या वो स्वस्थ बन जाएगा या वो और बीमार पड़ जाएगा? সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, वो और बीमार पड़ কারণ जाएगा, তার রক্ত অলরেডি ইনফেকশন হয়ে রয়েছে। क्योंकि उसका लहू ऑलरेडी इन्फेक्शन में हो चुका है। কিন্তু কোনো ইনফেকশন ব্যক্তি যার শরীরের রক্ত খারাপ হয়ে গেছে, मगर कोई इन्फेक्शियस व्यक्ति जिसका लहू खराब हो चुका है, তার সেই রক্ত ছড়িয়ে যদি একটা ভালো রক্ত দেওয়া যায়, তাহলে সে কি হবে? সুস্থ হয়ে যাবে। और उसके शरीर से वो गंदे लहू को हटाकर अगर अच्छा लहू दिया जाए तो वो चंगा हो सकता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যিশুর রক্ত আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে, কারণ যিশুর রক্ত পবিত্র এবং শুচি। और यीशु मसीह का लहू हमें पापों से मुक्ति देता है क्योंकि उनका लहू पवित्र और सूची है। প্রভুর ভোজের মাধ্যমে আমরা সেই রক্তকে গ্রহণ করি, और प्रभु भोज के माध्यम से उस लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं আর সেই অসুস্থতা আমাদের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে যায়। और वो बीमारी हमारे अंदर से निकल जाता है। শয়তানের সমস্ত রকম পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে যায়। शैतान का हर परिकल्पना हमारे अंदर से निकल जाता है যখন আমরা যিশুর রক্তকে স্মরণ করি, जब हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के लहू को हम लोग स्मरण करते हैं। এটি সাধারণ নয়, ये साधारण विषय नहीं है, কারণ মৃত্যুর মাধ্যমে যিশু সেই ব্যক্তিকে পরাজিত করেছিলেন যার মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। और मृत्यु के माध्यम से उस इंसान को पराजित किए थे जो मौत देने में सक्षम था। সেই শয়তান वो शैतान তাকে হারিয়ে দিয়েছিল, उनको हरा दिया था, তার মস্তক চূর্ণ হয়েছিল, उसके सर को कुचल दिया था। যখন আমরা প্রভু ভোজ গ্রহণ করি, আমাদের জীবনে অনেক সুখ আসে। और जब हम लोग प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं हमारी जिंदगी में बहुत सुख आता है, আর এটাই বিশ্বাসীদের জন্য গিফট। और यही विश्वासी के लिए एक उपहार है। হালেলুয়া। हालेलुया। এফেসীয় 1:7, इफिसियो उसका 1 अध्याय का 7 पद, যাহাতে আমরা তাহার রক্ত দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি, ইহা তাহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে। उसकी बलिदानी मृत्यु के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। उसके संपन्न अनुग्रह के कारण हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, अपने उसी प्रेम के अनुसार जिसे वो मसीह के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। ঈশ্বর আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है আর এইটা করা হয়েছে और ये किया गया है যিশুর মৃত্যু দ্বারা। परमेश्वर के यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। যদি আপনার দ্বারা কোনো পাপ ভুল বা অন্যায় হয়ে থাকে, और अगर आपके द्वारा कोई पाप या गलती हुआ है, তখন আপনি যখন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন, এই প্রভুর ভোজের গ্রহণের মাধ্যমে আপনার সেই পাপের ক্ষমা হয়। और जब आप प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं इस प्रभु भोज के माध्यम से आपके पापों को क्षमा मिलता है। আপনি যদি বিশ্বাস ছাড়াই প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন, अगर आप विश्वास ना करके अगर प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, এটা আপনার জন্য ক্ষতিকারক। ये आपके लिए बहुत ही क्षतिपूर्व हो सकता है या आपके लिए बहुत खतरनाक बन सकता है। এটা আপনার জন্য খারাপ। ये बुरा चीज होगा आपके लिए। বাইবেল বলছে তুমি যে কেউ তার দেহ না চেনে সে বিনষ্ট হয়, और जो उनके शरीर को नहीं पहचानता है उसका विनाश होता है। কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাসের সাথে এবং প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, আপনি অনেক কিছু অনুভব করবেন, তার মধ্যে সুস্থতা সবার প্রথম এবং মুক্তি এবং পাপের ক্ষমা। और आप बहुत कुछ आप अनुभव करिएगा। पहले है चंगाई, फिर है आपका पापों से मुक्ति और फिर है आपका जिंदगी में खुशी। हालेलुया। 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 প্রভুর ভোজ পাপের ক্ষমা পাবার একমাত্র উপায়। और प्रभु भोज अपने पापों के क्षमा का एकमात्र उपाय होता है। নিজেকে পরীক্ষা করুন,
खुद को परीक्षा में डालिए, পরীক্ষা করুন, खुद যাচাই को করুন। जचाई करिए, खुद को जानिए। যেরকম প্রথম করিন্থীয় তার 11 অধ্যায় 28-29 পদ বলছে, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 28 और 29 पद में कह रहा है, কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পান পাত্রে পান করুক, কারণ যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে সে যদি তার শরীর না চেনে তবে সে আপনার বিচারাজ্ঞায় ভোজন পান করে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्ति को चाहिए कि वो पहले अपने को परखे और तब इस रोटी को खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि प्रभु के देह का अर्थ समझे बिना जो इस रोटी को खाता और प्याले से पीता है वो इस प्रकार खा पी कर अपने ऊपर दंड को बुलाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা প্রভুর ভোজের সময় আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, और प्रभु भोज के समय में हम लोग परमेश्वर के और नजदीक आते हैं খ্রিস্টের রক্ত এবং দেহর কাছে আসি, और ख्रिस्ट यीशु मसीह के लहू के पास आते हैं। আর এই কাছে আসা একটা পদ্ধতি রয়েছে, সেটা পবিত্র পদ্ধতি। और इसका एक पद्धति होता है जो बहुत ही पवित्र पद्धति होता है। ক্ষমার মাধ্যমে তার কাছে আসা, পবিত্রকৃতভাবে তার কাছে আসা। क्षमा के माध्यम से उनके पास आना, पवित्रता के साथ उनके पास आना। হালেলুয়া। हालेलुया। চিন্তা করুন আপনার কাছে ইলেকট্রিক বোর্ড আছে, और आप सोचिए आपके पास इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, তাতে কারেন্ট আছে, उसमें करंट भी है আপনি একটা लोहाর পেরেক নিলেন और आपने एक लोहे के प्रेग को लिया আর সেই চলন্ত কারেন্টের সেই প্লাগের মধ্যে আপনি পেরেকটা ঢুকিয়ে দিলেন, और उस प्लग के अंदर वो बिजली से भरपूर उस प्लग के अंदर आपने उस प्रेग को घुसा दिया, আপনার কি হবে? आपको क्या होगा? আপনি ইলেকট্রিক শর্ট খাবেন, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, কারণ আপনি এটা সঠিক পদ্ধতি করেননি, क्योंकि आपने ये सही नहीं किया, সঠিকভাবে ইউজ করেননি। सही से इस्तेमाल नहीं किया। কিন্তু যদি আপনার লাইনের প্রয়োজন, লাইট জ্বালাবার প্রয়োজন, তার প্লাগ নিন আর সেই প্লাগটা নিয়ে গিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে সেই প্লাগের মধ্যে ইন করুন, তাহলে কি হবে? লাইটটা জ্বলবে। और अगर आपको रोशनी का जरूरत है तो उस प्लग को लीजिए सही तरीके से, उस प्लग को उस सॉकेट के अंदर डालिए और देखिए तब आपको रोशनी मिलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। প্রভুর ভোজ যিশুর উপস্থিতি, और प्रभु भोज यीशु मसीह का उपस्थिति होता है। আর যদি আমরা এতে বিশ্বাস করি, আমরা এতে অংশগ্রহণ করি और अगर हम लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें हम लोग भाग लेते हैं এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করি, और इसके आशीर्वाद को ग्रहण करते যদি हैं, আমরা বিশ্বাস না করি, अगर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, যদি আমরা দুঃখে থাকি এবং বা ভুল মনোভাব নিয়ে সেই প্রভুর ভোজ গ্রহণ করি, अगर हम लोग दुख में रहते हैं और गलत नजरिए से अगर हम लोग प्रभु भोज को लेते हैं, তাহলে আমরা বিচারে দাঁড়াই। तब हम लोग विचार में खड़े होते हैं। সেই জন্য আমাদের উচিত প্রভুর ভোজকে পুরোপুরি বোঝার পর প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা। इसलिए जरूरी होता है कि प्रभु भोज को अच्छे से समझना, उसके बाद उसको ग्रहण करना। আর এই জন্য প্রভুর ভোজের সার্ভিসের সময় আমরা এই বিষয়টাকে রাখি। और इसीलिए प्रभु भोज का जब सर्विस होता है तो इस विषय को हम लोग रखते हैं, যেন নিজেকে যাচাই করি, পরীক্ষা করি এবং পাপের ক্ষমা চাই। और खुद को देखे परखे और पापों का क्षमा मांगे। আমরা যখন ক্ষমা চাই, বিশ্বস্ত ঈশ্বর তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। और हम लोग जब क्षमा मांगते हैं तो विश्वसनीय प्रभु हम लोगों को क्षमा करते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভুর ভোজ হলো একটি ঘোষণা। प्रभु भोज एक घोषणा है। যখন আপনি প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন আর আপনি শয়তানকে ঘোষণা করেন যে তোমার কর্তৃত্ব আমার জীবনে আর চলবে না, কারণ যিশুর রক্ত আমার শরীরে আছে আর তুমি বিনাশ হবে। तेरा कर्तृत्व और मेरे जिंदगी में नहीं चलेगा क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर है और तू विनाश हो जाएगा। প্রভুর ভোজ হলো সুস্থতা। प्रभु भोज होता है चंगाई। যখন আপনি প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেন তখন শয়তানের কর্তৃত্ব আর কাজ করে না, শয়তানের সেই পাপের বেতন আর আপনার জীবনে থাকে না, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয় আর আপনি সুস্থতা পান। और आपको चंगाई मिलता है और शैतान का कोई कार्य, शैतान का कोई परिकल्पना, शैतान का कोई भी चीज आपके अंदर और नहीं रहता है जब आप प्रभु भोज लेते हैं। হিব্রিয় তার 4 অধ্যায় 16 পদ বলছে, অতএব আইসো আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে সময়ের উপযোগী এবং উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। और इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 16 पद में कह रहा है, तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़े, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। প্রভুর ভোজ হলো একটা ঐক্যতার চিহ্ন। और प्रभु भोज है एकता का चिन्ह। প্রভুর ভোজ যখন আমরা উদযাপন করি, और प्रभु भोज जब हम लोग लेते हैं या हम लोग उत्थापित करते हैं, এটা
শুধুমাত্র যিশু এবং আমার সাথে সম্পর্ক নয়, ये सिर्फ यीशु मसीह और मेरे साथ संपर्क के विषय में नहीं কিন্তু है, এই উপস্থিতি আমরা আমাদের ফ্যামিলিতে, আমাদের পরিবারেও দেখতে পাই। और ये उपस्थिति हम लोग अपने परिवार में, हमारे फैमिली में भी देख सकते हैं। এইটা আমাদের ভাই বোন, আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে জড়িত, ये हमारे भाई बहन, हमारे फैमिली के साथ मिला हुआ है, আমাদের শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত। हमारे शरीर के साथ मिला हुआ है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই জন্য আসুন আমরা যিশুর সাথে আমাদের ঐক্যতা পালন করি। और आइए इसीलिए यीशु मसीह के साथ हम हमारे एकता को पालन करते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। প্রভুর ভোজ যেটা আমরা গ্রহণ করি সেটা নিয়ম নয়। और प्रभु भोज जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो कोई नियम नहीं है, এই উদযাপন ঘোষণা করা শয়তানের বিরুদ্ধে। और ये है शैतान के विरुद्ध में घोषणा करने का एक उद्यापन। এই প্রভুর ভোজ হচ্ছে ঘোষণা করা যে আমি পাপ থেকে মুক্তি, আমার জীবনে যিশুর রক্ত আমার পাপকে মোচন করে। और हम पाप से मुक्त हो चुके हैं क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें पापों से मुक्ति दिया है। এই প্রভুর ভোজ হলো ঘোষণা আমি সুস্থতা পেতে পাই যিশুর রক্ত দ্বারা। और ये घोषणा है कि हमें चंगाई मिलता है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। যার जন্য যারা মণ্ডলীতে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে অনেকেই যারা অসুস্থ অবস্থা আছে এবং সুস্থতা পায়। और इसीलिए जो जो मंडली में प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं वो बीमारी लेकर आते हैं मगर चंगा होकर लौटते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, প্রভুর ভোজ আমাদের জন্য একটা গিফট, और प्रभु भोज हमारे लिए एक उपहार है। কিন্তু সেই গিফট বা সেই উদ্ধারকে গ্রহণ করার জন্য আপনাকে সঠিক পদ্ধতি সহকারে গ্রহণ করা और উচিত। इसीलिए इस उपहार को ग्रहण करने के लिए आपको सही तरीके से इसको ग्रहण करना है, পবিত্র এবং ক্ষমার মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত, पवित्रता और क्षमा के माध्यम से इसको ग्रहण करना আর चाहिए, যা আপনাকে উদ্ধার এবং শান্তি দেবে। जो आपको उद्धार देगा और शांति देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি আপনি এই ভোজের বিষয় বুঝতে পেরেছেন, और मुझे यकीन है कि आप इस भोज के विषय में समझ पाए हैं, আর এই ভোজ আপনাকে আরো ঈশ্বরের কাছে নিয়ে और আসবে। ये भोज आपको और परमेश्वर के नजदीक लाएगा। কিন্তু অপবিত্র দেহকে না চিনে গ্রহণ করা মানে অভিশাপকে গ্রহণ করা, কিন্তু তাকে জেনে পাপের ক্ষমার মাধ্যমে গ্রহণ করা মানে আশীর্বাদকে গ্রহণ করা। और उसको पवित्रता के साथ ग्रहण करना मतलब होता है आशीर्वाद के साथ ग्रहण करना। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রার্থনা করি। आइए प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা, আজকের এই ভোজের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। पवित्र पिता, आज इस भोज के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, যতজন দেখছে প্রভু সেই ভোজকে যেন তারা রেসপেক্ট করতে পারে, और जितने कोई देख रहे हैं उस भोज को रिस्पेक्ट कर सके, সেই भोजेর মূল্য যেন বুঝতে পারে। उस भोज के मूल्य को समझ सके। এটা কোনো নিয়ম নয়, ये कोई नियम नहीं है, এটা তোমার সঙ্গে আমাদের চুক্তি। ये तेरे साथ हमारा चुक्ति होता है। এই রক্ত আমাদের পাপের মোচন করে, ये लहू हमारे पापों को साफ करता है, এই রক্ত আমাদের সমস্ত অসুস্থতাকে ধুয়ে দেয়, और ये लहू हमारे हर बीमारी से हमें चंगाई देता है। এই রক্ত আমাদেরকে ঘোষণা করায় যে শয়তান হেরে গেছে আর তোমার সেই বিজয়প্রাপ্ত জীবন। और ये लहू घोषणा करता है कि शैतान हार चुका है और तू विजय प्राप्त हुआ है, আর আমরা তার সঙ্গে যুক্ত। और हम इसके साथ युक्त हैं। ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদেরকে যুক্ত করেছো। धन्यवाद, तू हमें युक्त किया है। যতজন আমরা তোমার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই ভেতর থেকে, আমরা যেন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতে পারি। जितना कोई हम लोग तेरे साथ युक्त होना चाहते हैं, हम लोग दिल से इस प्रभु भोज को ग्रहण कर सके, আর এটাই আমাদের উপহার। और यही हमारा उपहार। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। গৌরব তোমার যিশু নামে চাই। गौरव तेरा यीशु नाम से मांगते हैं। আমেন। आमीन। আমেন। आमीन। আমেন। आमीन। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। প্রভুর ভোজের মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনকে পবিত্রকৃত করুন এবং সঠিক করুন। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्रभु भोज के माध्यम से अपने जिंदगी को अच्छे से संवारिए और पाप मुक्त होइए। আমেন। आमीन।